Hello, good morning. And this is Sudeep Srivastava. And मैं जा रहा है अभी साइंस सेंटर साइंस सेंटर जा रहा हूँ एक इवेंट के लिए, जो कि मेरे बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी ख़ास है, मैं इसलिए आप लोगों को ज़रूर मिलाऊंगा। एंड जैसी पोस्ट बाय। हे गाइस, सो बेसिकली आई रीच्ड रीजनल साइंस सेंटर और अभी अंश का इवेंट चालू हुआ नहीं है। लोग अभी आ ही रहे थोड़े बहुत, अभी दो ही लोग दिखे मुझे, बाकी टीम वाले आ चुके होंगे। बैनर्स तो लग रहे हैं भैया, तो अब देखते क्या होता है। वैसे इवेंट तो काफ़ी शानदार होने वाला है, मेरे को पता है, बिकॉज ये अंश हैप्पीनेस सोसाइटी ने रखा है। तो इवेंट शानदार ना हो ऐसा हो सकता है? डू यू थिंक दैट? नो, इवेंट फाड़ू होगा, फाड़ू। सो कुछ नहीं करते, बस इतना ही बताना था। एंड लेट्स कैरी ऑन एंड लुक व्हाट्स हैपनिंग। बाकी मिलते हैं। तो फाइनली अभी इवेंट के लिए हम अंदर घुसे हैं। एंड दिस इज़ द ऑडिटोरियम जहाँ पे इवेंट होने वाला है। सबके बैग पड़े हुए ऐसे ही। एंड लेट्स सी हाउ स्कूल। हाय व्लॉगोहॉलिक। हाय। सॉरी आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही दिखा सकता हूँ। मैंने तो इनको लेके जाऊँ ना, यहाँ लाइन बना के लोग देखो। To what I tell you, and not an ounce more. Wanderer, wanderer, you are lost evermore. हाँ यूट्यूब चालू करो। Good morning to all dignitaries and gatherings present today. My name is Rishabh Jain Wow. And I am Purvasha Mathur. and we welcome you today to have some words on mental health of a child's mind. Today, we have amidst us minds that are creative, the soul that are pure, and hearts that are innocent. But there are times when best of such are disturbed due to certain issues. Our event today comprises of such discussion on what all this is about. UX is a notion, an initiative that is concerned to all psychology-related mentioned topics. We have today representative of various schools and motive is to find out And presently is the guest faculty in Excellence College. Presently, she is also running a clinic and is a vocational trainer conducting sessions across India, training students, teachers and parents. अरे इन्होंने तो मेरे को ठीक किया। बोलेंगे तो वही ना। We welcome you, ma'am, to our great talk. Our next panel member is Mr. Shashank Parimi. He did his bachelor's in aeronautics, has been a great volunteer of Swans, Arushi, Parvarish and many organizations. He has also volunteered in elementary education. His work field also includes child education and experience with Eklavya as on multi-intelligence. To know certain definitions that you might personally have about what we're talking about here. First of all, children. Like we need to understand how we're addressing children here, because there's a big difference between children and adolescents and the teenage age and when they come to youth. How do you define children and how do you define psychology when it comes into their context? And then how do you define first aid for them? If we could start with just defining these three terms, that would be okay. Ma'am,
A very warm morning to all. I would first congratulate the Ansh team for taking such an initiative because this is an area, you could say, which has not been highlighted more. जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं या मनोविज्ञान की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है दिमाग में तो वो मनोवैज्ञानिक के पास जाता है, नहीं तो हमें सर्दी खांसी बुखार रहता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है अंश का कि एटलीस्ट इस वाले पहलू को भी उन्होंने लिया है। जब हम लोग बात करेंगे तो मैं चाहूँगी बच्चों से कि खुलकर बात करें। वी ऑल आर बेसिकली इंडियंस और भाषा हमारे लिए कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए और हमें हिंदी बोलने में भी बहुत गर्व होता है। तो आप आराम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जब मुझे कहा गया कि साइकोलॉजी क्या है बच्चों के हिसाब से या हम बच्चे किसे कहते हैं, जब हम बच्चों की बात करते हैं पर मुझे तो यहाँ पर सारे 9 साल से बड़े दिख रहे हैं। इज इट करेक्ट? यस, ओके। तो 9 to 19 इयर्स वाले जो होते हैं वो अडोलेसेंट होते हैं या किशोर वय होते हैं और उससे छोटे वाले जो होते हैं वो बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सब किशोर वय की स्थिति में हैं, तो हम लोग किशोर वय पर ज़्यादा बात करेंगे। जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान में ये ज़रूरी है जो हमारे मन को समझ सके। बहुत बोर है, थोड़ा लाउडर। गुड मॉर्निंग। लेट्स यू विंस, गर्ल्स और बॉयज। गुड मॉर्निंग। ब्रिलियंट। ठीक है, पहुंच लो धीरे धीरे। केएफसी का नाम सुना है आपने? केएफसी क्या है? तो मैं आपको एक छोटा सा साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बताऊंगा, डीएफसी। केएफसी का बड़ा भाई? वेरी गुड। समझिए क्या है डीएफसी? डी फॉर डिसिप्लिन, एफ फॉर फ्रॉलिक, फ्रॉलिक मतलब मस्ती, एंड सी फॉर क्यूरियोसिटी। ये 3 मंत्र है और कुछ नहीं। जब हम छोटे रहते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं होता, ठीक है, चलता है। फ्रॉलिक और क्यूरियोसिटी। फ्रॉलिक मतलब मस्ती। अभी मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, कोई भी यहाँ मस्ती करने नहीं आया, सब पढ़ने आए, सुनने आए। देखिए कैसे जैकेट बैग्स पकड़ के एकदम स्ट्रेट बैठे हुए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट शोज मी दैट यू हैव डिसिप्लिन, दैट्स द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज। लेकिन उस डिसिप्लिन के चक्कर में हम फ्रॉलिक और क्यूरियोसिटी भूल जाते हैं। कितने लोगों ने पूरे ऑडिटोरियम को सर घुमा के देखा है? क्या क्या है यहाँ पर? देखो जरा, पलट के देखो, सर घुमा के देखो, कौन भाग रहा है, कौन दौड़ रहा है, कितने लोग पीछे बैठे हैं, क्या क्या ऊपर बना हुआ है, आजू बाजू। याद है? याद है जब छोटे बच्चे थे तो कैसे भागते थे? So these things are missing now. Why they're missing? Because of what ma'am said, stress. मैं आपसे पूछता हूँ, किस चीज का स्ट्रेस है? फेसबुक का, व्हाट्सएप का, गर्लफ्रेंड का। अरे कौन बोले? हाँ, वो थोड़े बड़े हो गए। ठीक है, वो थोड़े बड़े हो गए, पर हाँ, गर्लफ्रेंड का, रिलेशनशिप्स का, और किसका? फ्यूचर का। है फ्यूचर का स्ट्रेस? है? कितने लोग अभी भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं? आज शाम को क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, कितने असाइनमेंट करने, कितना होमवर्क करना है, एग्जाम आ रहे, कौन कौन सोच रहा है? शाबाश। आप लोग में से कोई भी नहीं? कोई भी नहीं? पक्का? देयर कम्स। और स्कूल में स्ट्रेस है? क्या स्ट्रेस है मुझे बताओ, चलो एक कोई बताओ। क्या स्ट्रेस है? असाइनमेंट्स। नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है। मैम मैं तो डर रहे हो। नहीं, चलिए, दिस आइडिया दैट डीएफसी, स्वामी विवेकानंद का नाम जानते हैं आप? यस, उन्होंने कहा था कि हमारी एजुकेशन सिस्टम शुड फर्स्ट ट्रेन द माइंड, शुड डिसिप्लिन द माइंड, एंड देन शुड बी गिवन द फैक्ट्स। पहले आप क्या होता है, पहले आपको फैक्ट्स दिए जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि अरे मैं उसे कंट्रोल कैसे करूं। सिंपल सा उदाहरण है इसका। क्या चीज सबसे कॉमन है आपके बीच में? कोई मूवी, कोई हीरो, कौन? कोई हीरो, कोई मूवी, कोई कार्टून कैरेक्टर, कुछ भी। एक चीज करते देखते आपको पता चल जाएगा इससे कि आपका कितना डिसिप्लिन है, कितना थॉट कंट्रोल। Gulati sir, actively working for social issues, also associated to UNICEF. His qualifications includes being a communicator specialist. He also actively works for mental health and aid for children.
We welcome you, sir. I would also like to invite Mr. Nilesh Dubey, sir, who is advocacy officer and also associated to Child Rights Observatory. We welcome you, sir. To catch up with the session, we've been talking about how we define children, psychology, and first aid for them, and we'd like to move on to why do you think we should take the issue of psychology with children up? Like, why do you think it's important to talk about it? What issues do they face, and what impacts them, like in today's generation? So, would you like to say something? Say, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ही बोलूँगा मैं, चलेगा ना? एक्चुअली मैं चाइल्ड राइट्स ऑब्जर्वेटरी से हूँ, जो बच्चों के अधिकारों के जो वायलेशंस होते हैं उनके ये काम करती है। पहले से बताया कि एडवोकेसी, हम लोग बेसिकली एडवोकेसी और रिसर्च करते हैं। और एक और हमारा एक्टिविटी है कि हम लोग बच्चों के साथ भी एक्टिविटी करते हैं, खासकर बच्चों के पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हम लोगों की एक्टिविटी है, जो मध्य प्रदेश के 25 डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब हम लोग से 3000 बच्चे एसोसिएट हैं। और ऐसी कार्यशाला होती है, वर्कशॉप्स होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है, डिस्ट्रिक्ट्स पे भी होती है। और जैसे अगर आप बच्चों की बात सुनोगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे ये टर्म्स अपन यूज कर रहे हैं कि क्या बच्चे जैसी बात कर रहे हो। लेकिन ऐसे इन व्यू कोर्स ऑफ दीज पास्ट 7 years मैंने काफी नोटिस किया कि कभी कभार बच्चे कुछ ऐसी चीज बोल जाते हैं कि आपका पूरा एग्जिस्टेंस हिल जाता है। अगर वो अपन थोड़ा सा क्लासरूम स्पेस में उनको बोलने का मौका दें और उनको अपन थोड़े से लिबरल हो जाएं और अपना, जैसे इन्होंने बोला था कि सर बहुत पेटे थे, बट बैक इन द टाइम जब ऑलमोस्ट सेम जनरेशन ही होगा, बट मैंने काफी स्किल्स सीख लिए थे टीचर की पिटाई से बचने के लिए। तो ये एक स्किल वहां से आ गया। सो बेसिकली इससे थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि इफ यू ट्रीट देम एज फ्रेंड्स, जैसे सर ने बोला था कि मैं आपको फ्रेंड्स ही बोलूंगा, सो इफ यू ट्रीट देम एज फ्रेंड्स तो वो आपसे ज्यादा थोड़ा सा खुल के बात भी करेंगे, एंड देन एज सच जो प्रॉब्लम्स अपन फेस करते हैं वो एटलीस्ट रिड्यूस होंगी। एकदम से कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन तो नहीं ही है, हर कंटेक्स्ट में, हर संदर्भ में, अलग अलग सिचुएशंस में यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, बट या इट्स अ स्टेप। सर की बात पे एक चीज बोलना चाहूंगा, देयर शुड बी टू वेज टू कम्युनिकेट, देयर टू वेज टू कम्युनिकेट। आपके सामने कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उससे ऐसे खड़े होकर बात करोगे तो आपको दो तरीके करने हैं जिससे आप उससे बात करेंगे। एक तो गो डाउन टू द गेट, होता है यहाँ पे जाकर या उससे उठाओ और एक जो बोल रहे थे सर कि आप या तो उनके लेवल पे जाओ या तो उनको अपने लेवल पे लाओ। अगर आपने ऐसे बात करी तो आप देखिए 5 मिनट से ज्यादा आपकी बात नहीं सुनेंगे। ऐसा करेंगे जो होते हैं so that's only two ways. Life में भी यूज कर सकते हैं, either you go down to their level और pick them up to your level. बस और कोई कम्युनिकेशन का तरीका नहीं। जस्ट टू ऐड ऑन, तो अगर हम जो मेरे को बेटर वे लगता है कि वो ये है कि अगर हम उनके लेवल पे जाएंगे तो उनके साथ साथ हमारी भी ग्रोथ होगी, क्योंकि यही बात है मैं हमेशा से स्ट्रांगली मानता हूँ कि द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग इज अनलर्निंग। बहुत बड़ी चीज बोल रहे हो और कई हमारे भाग में काफी चीजें होगा सिलेबस एक फिक्स टाइम में कंप्लीट करना होता है, उनके पास अपने प्रेशर्स हैं,
ऐसा कोई भी टीचर नहीं है कि वो सोच समझकर आपको ह्यूमिलेट करना चाहता है या आपको पनिशमेंट देना चाहता है। जो सर बता रहे थे डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म बात करते हैं, तो वो हम और कहीं का गुस्सा आप लोगों पर कई बार निकल जाता है। पर ये है कि अगर आपको बुरा लगा है तो हमेशा कम्युनिकेट करें। संप्रेषण जो है वो बहुत बड़ा हथियार है, और अपनी बात जब चीज़ें स्थितियाँ ठीक हो जाए तब टीचर से कहें कि मैडम मेरी कहीं गलती नहीं थी, या अगर आपको ऐसा लगता है तो मैम प्लीज़ थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए ताकि अगली बार मैं ऐसी स्थिति नहीं आने दूँ। क्योंकि वो जो हम बात ही नहीं करते, अपनी बात कहते ही नहीं है और वो टीचर तक नहीं पहुंच पाती है, और हम एक गठान बांध के बैठ जाते हैं कि टीचर बुरी है और टीचर हमेशा इस तरह की पनिशमेंट देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार ये कोशिश भी करके देखें कि टीचर से बात भी करके देखें कि ऐसी कौन सी स्थिति थी या कहाँ उन्होंने आपको गलत पाया जिसके कारण आपको पनिशमेंट मिली। And that's one. Second was it was talking to children, so that's what work I enjoy. जो भी मैं बात करूँगा मोनली पर्सनली बेसिस पे ही करूँगा, बहुत ज़्यादा I'm not go official on this. I'm not an expert on mental health. I'm not an expert on psychology. So I have a lot of respect for Sarthik sir, Reena ma'am, Shashank, Nilesh, and Kokila. I like to also kind of pay my respect to the dais. I'm a child rights person. I talk about rights. बच्चों के क्या अधिकार है? हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें? जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जिसमें भी चलेगा। हिंदी चलो, हिंदी में करें। हम बच्चों के अधिकारों की बात करता हूँ। बच्चे क्या होते हैं? हमें पता है क्या? डेफिनेशन क्या है बच्चों की? 14 साल, 13 साल, 12 साल, 11 साल, 5 साल, 6 साल। किसी को पता है बच्चे मतलब क्या? What is a child? What is the age of a child? Simple. हाँ, बोल सकते। बताओ 5 साल से। अब बच्चे हो के नहीं बच्चे? या नो? एज कितनी आप लोगों की? 15 का कोई है? 11, 10, 12, 13, सब 18 के हैं क्या? Okay, चलो, to make your life easier, जो भी 18 साल तक का है, as per Convention of Rights of a Child, जो बाल अधिकार समझौता है, जिसको UN और जिसको भारत सरकार ने भी साइन किया हुआ, उसके मुताबिक जिसने भी 18th बर्थडे नहीं मनाया, that is a child. It doesn't matter 0 से लेके 18 तक, उसको कैटेगरी में बच्चे मानते हैं। बच्चों के इसका क्या मतलब? बच्चों के कुछ अपने अधिकार हैं। This is your right. Like I am a human being, I have my rights. As children, you have your own rights. आपका सबका नाम है कि नहीं है? ये भी अधिकार है बच्चों, और ये बहुत जरूरी अधिकार है कि नहीं? नेशनैलिटी होती है, नाम होती है, सब आपके राइट्स हैं। बच्चों के अधिकार है कि सरकार उनको कोशिश करे कि बच्चों को जीने का अधिकार मिले। मतलब आपको अगर तबीयत खराब होती है, बीमारी होती है, तो गवर्नमेंट का रोल होता है, और जितने हम बड़े, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। आपके अधिकार हैं, आप भी उसके अधिकारों के जिम्मेवार हैं, हम भी आपके अधिकारों के जिम्मेवार हैं, तो सब स्टेक होल्डर्स हैं। तो हम सबका काम है कि आपको सर्वाइवल, ताकि आपको जीने का अधिकार मिले। एजुकेशन पे मैं काम कर रहा था, मैंने देखा था टीचर्स भी किस दिक्कतों से गुजरते हैं। तो बेसिकली अपनी प्रॉब्लम ये है कि जो भी अपन सेंट्रल लेवल पे जो एजुकेशन पॉलिसीज बनती हैं वो अभी तक हेवीली ब्रिटिश से इंस्पायर्ड है। तो बेसिकली हम आज़ाद एज अ कंट्री तो हो चुके हैं, बट लेकिन स्टिल उनकी थिंकिंग और उस पॉलिसी से हमको छूटने में टाइम लग रहा है। धीरे धीरे होगा, बट लेकिन मेन प्रॉब्लम वहीं पे आ रही है, क्योंकि जो स्कूल में जो डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म, ये सब कुछ जो भी सिस्टम जो भी लागू हुआ है, वो देखा जाए तो वो 18th सेंचुरी विक्टोरियन इंग्लैंड के ट्रेडिशंस हैं। खैर वो लोग तो आगे निकल गए, बट हमको भी अभी थोड़ा थोड़ा सा, जैसे हम लोग वी आर ऑल ट्राइंग कि उससे छूटे, बट लेकिन आगे उससे बढ़ पाए, क्योंकि बहुत सारे ऑल्टरनेट स्कूल्स हैं इन इंडिया जिसमें ये सारे सिस्टम्स नहीं हैं, और जिसमें सिलेबस, जैसे सिलेबस चुनने का भी एक हिसाब से आफ्टर 8th स्टैंडर्ड और इन 8th स्टैंडर्ड सिलेबस चुनने का अधिकार भी बच्चों के पास रहता है, बिकॉज ऑप्शंस रहते हैं कि उनको क्या पढ़ना, उनको क्या नहीं पढ़ना। सो ऐसा एजुकेशन आ रहा है दैट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन चाइल्ड साइकोलॉजी, इन
अब मैं ये नहीं बोल रहा कौन अच्छा है कौन सा बुरा है, मैं आपको बस चीज बता रहा हूँ, आप सोचिए। जैसे मीडिया जानते हैं ना, मीडिया यही करता है, वो आपको एक बम ब्लास्ट दिखाएगा और एक अरब बंदा दिखाएगा, वो ये नहीं बोलेगा कि इसने बम ब्लास्ट किया, वो बोलेगा व्हाट डू यू थिंक। वो आपको एक कार एक्सीडेंट दिखाएगा और लड़की दिखा देगा, वो ये नहीं बोल रहा कि लड़की चला रही थी तो कार एक्सीडेंट उसने कर दिया बिकॉज़ वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, इट इज जस्ट व्हाट डू यू थिंक। In the same way, I'm just giving you two options और आपको डिसाइड करना है कि क्या। उसने बुक में लिखा था कि यूरोपियन में या अमेरिकन में लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि बचपन में सिर्फ डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन मतलब उनका 7 बजे सोना रहता है बच्चों को, वो भी अलग रूम में, चाहे वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 7 बजे सोना है मतलब सोना है। और बेड टाइम स्टोरी आपने देखा होगा काफी बहुत, बेड टाइम स्टोरी माँ बाप का एक ढंग रहता है कि उन्हें करवाने के। तो 2 तरीके की चीजें, मॉडल साइंस हो रही है, क्यों माँ बाप बेड टाइम स्टोरी सुना, तो 7 बजे सो गया तो मम्मी पापा अपना बाहर जाए, कुछ भी करें, अपना टीवी देखें 12 बजे तक और 6 बजे उठ जाता तो बच्चा 5 बजे मम्मी पापा को उठाने, तो पहली चीज हो गई। और फिर बाद में 10-13 साल तक वो डिसिप्लिन रहता था, 13 साल में बोल दिया जाता था जो करना है करो, जो करना है करो, मतलब हमारे साथ रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, अपना कमाओ, अपना देखो, अपना करो। तो द आइडिया इज इन्वर्टेड है, बचपन से 13 साल तक का डिसिप्लिन माँ बाप के साथ पूरा प्रॉपर, और 13 साल में फ्री। तो दे गॉट समथिंग व्हिच दे आर इनोवेशन। क्या है इनोवेशन? इंडिया में क्या है, कौन बता सकता है मेरे को? उल्टा है, उल्टा क्या है बता। बचपन में कितना लाड़ प्यार होता है कि नहीं होता है? आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। बचपन में कितना लाड़ प्यार है, और मेरे लाला मेरे बच्चों आजा चिपका के सोते हैं बीच में 11 साल की उम्र तक, नहीं। और फिर क्या होता है, जैसे तेरा 9th क्लास में आया फिर क्या होता है? हाँ क्या होता है बताओ। तुझे तेरे दम पे छोड़ी, अब तू कर जो करना है तेरे। नहीं सच्ची इंडिया में नहीं, कुछ जगह देखा है, जो करना है, बच्चा है खेलने दो। नहीं लाइक ऐसे ही डांट वाटते टाइम। 13 साल में क्या होता है, चालू होगा 9th क्लास में आ गए, बताओ क्या होता है? पढ़ाई करो, समझ नहीं आता, डिसिप्लिन नहीं है कोई, पढ़ने का टाइम है कहाँ लगे हो? 4-4 घंटे तुम्हारी उम्र के साथ में एक जगह में बैठ के पढ़ता था, इतने नंबर आते थे, चूज करो अपना करियर। होता है कि नहीं होता है? उससे पूछें, किसी से भी पूछें, उनका अगर पूछे लाइफ एम क्या है, उनका एक्चुअली एम एक ही चीज होता है, एक अच्छी नौकरी, मंथली लाइक अराउंड अच्छा पैसा, गुड पैकेज, 50,000 to a lakh per month, 1 लाख मिल गया तो फिर तो लाइफ सेट है। So ऐसे ही आई वाज रीडिंग दिस फिलोसोफर, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे सार्त्रे करके। So उन्होंने यही बोला था कि जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था यूरोप, तो उन्होंने ये बोला था कि जो ह्यूमंस हैं अपना अपने काम को ही अपना एग्जिस्टेंस बना रहे हैं और अपना इंडिविजुअल एसेंस जो है वो खो रहे हैं। बिल्कुल हम एक मैकेनिकल रोबोट की तरह काम किए जा रहे हैं, और जिसकी वजह से वही हम अपने बच्चों पे फोर्स कर रहे हैं करने को। तो यहाँ पर ये कुछ कुछ छोटे छोटे एरियाज है जहाँ पर हम काम करें तो फर्स्ट एड भी हो जाएगा, एंड देन इसका क्या है कि अब्यूज और हो सकता है। बच्चों गुस्सा आता है आप लोगों को? बहुत ऐसा क्यों आता है बताओ यार, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, आप लोग ना कुछ मतलब सुन रहे हो, कुछ पीछे बैठे वो लोग कुछ बोल रहे हैं, बाकी कुछ जब ऐसा लग रहा है कि सोए हुए हो, ऐसा लग रहा है? हाँ आप ये बताइए, आपको गुस्सा आता है? क्यों आता है? ऐसे ही बताइए। सर आता है ना सर, कभी कभी कोई जब सर परेशान करता है सर, भाई बहन वगैरह, बेसिकली सर जब हमारी कोई मतलब एक्सपेक्टेशन सर पूरी नहीं कर तब आता है गुस्सा। अच्छा ग्रुप की
आत्मविश्वास हमें अपने अंदर जगाना है। हम हर परिस्थिति को उससे बाहर निकल के आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम थोड़ा सा कि अरे यार ये ना बोलना था मुझे उस समय, मैं बोल नहीं पाया या बोल नहीं पाई, ऐसा बोल देती। तो वो कॉन्फिडेंस जो हम कहीं ना कहीं हमारा डगमगा जाता है, उसके लिए छोटी सी एक्सरसाइज आज घर जाके ईमानदारी से करनी है। वो ये है कि 10 मिनट का अलार्म लगाना है। ठीक, हम वो सुबह में लगाते हैं, हम 10 मिनट का अलार्म लगाना है घड़ी में और अपने 50 पॉजिटिव क्वालिटीज लिखनी है। ठीक, 50 पॉजिटिव क्वालिटीज और आप में उससे ज्यादा है। ठीक, पर वो 10 मिनट में 50 हो जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाह मुझ में तो इतनी सारी खूबियां हैं। तो जितना भी क्रिएटिविटी की बात चल रही थी, सकारात्मकता की बात चल रही थी, जो हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बात करते हैं, उन सब चीजों को हम आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। हमें जितनी ज्यादा सकारात्मकता रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, हम चीजों को कर लेंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हमारा मत सोचो, है ना। तो हम उसके बारे में सोच लेते हैं, अरे यार कम नंबर मिले तो मेरा दोस्त क्या बोलेगा, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, माय गॉड टीचर तो कैसे बोलेगी मुझे। तो वो सब के बारे में सोच के ज्यादा घबराहट हो जाती है और हमारा रिजल्ट जितना हमने याद करा है, जितनी हमारी तैयारी है, वो सारी गड़बड़ा जाती है। तो अब से हम सबसे पहले जाकर, जैसे टीचर्स होमवर्क देती है ना, तो इसमें भी छोटा सा होमवर्क मेरी तरफ से कि 50 पॉजिटिव क्वालिटीज। क्या आप चाय अच्छी बना लेते हैं, आप मैगी अच्छी बनाते हैं, आप बाथरूम में गाना अच्छा गाते हैं, ये सारी हमारी क्वालिटीज है। जरूरी थोड़ी है कि हम स्टेज पे खड़े होकर गाएंगे तभी हम अच्छा गाना गाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी भी हमारी अपनी क्वालिटीज है कि वाह हम कितने अच्छे दिखते हैं। और एक काम और करना है कि हफ्ते में कम से कम एक बार, वैसे तो हम रोज मिरर के सामने अपना 15 मिनट बिताते ही हैं। जैसे सुबह उठते हैं तो पहले लड़के लोग अपना बाल देखते हैं कि हाँ ठीक दिख रहा हूँ, ब्रश बाद में करते हैं। और लड़कियां क्या करती हैं, पहले देखती कि कितनी ऑयली स्किन हो रही है, पिंपल तो नहीं आ गया है। तो ये सब चीजें जो है अल्टीमेटली आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगी। तो अपनी 50 पॉजिटिव क्वालिटीज लिखिए और आपका आत्मविश्वास ही आपको हर सीढ़ी पर आगे बढ़ाएगा और सफलता की ओर लेता चला जाएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। थोड़ा सा दूसरा कमिटमेंट है मेरा, तो मैं आप लोगों के साथ इस पैनल डिस्कशन में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। बाकी सर लोग हैं वो अपने। जब मैंने नौकरी का इंटरव्यू देने गया था तो शायद मैं पहले 8 या 10 इंटरव्यू में फेल हो गया। मैं सोचता था मैं क्या गलती करता हूँ, सब कुछ तो है, डिग्री है, सब कुछ है, लेकिन मेरे को नौकरी नहीं मिलती थी। जब जाता था फेल हो गया, वापस आ जाता था। फिर लोग कहते थे, जैसे अभी भी कई लोग आते हैं मेरे पास, सर हमने बहुत बार अप्लाई किया लेकिन नहीं मिलता, क्या करें। अरे सर हर बार अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट इज एक्चुअली अ स्टार्ट। मैंने सोचना शुरू कर दिया, मैं 25 बार भी रिजेक्ट होऊंगा लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा और देखूंगा कि मैंने क्या गलती की, क्यों रिजेक्ट हुआ। कई बार हमारे हाथ में होता है रिजेक्शन कई बार हमें नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, इसलिए भी रिजेक्ट हो जाते हैं ना। अब कई बार हम जाते हैं, हमें नहीं पता उनको क्या चाहिए, लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि मैं हार मान जाऊंगा। इनफैक्ट जब मैं रिजेक्ट हुआ तब तक मुझे और एनर्जी मिली कि मैं उसको आगे और कैसे लेके जाऊं। मतलब मुझे लगता था कि यार जरूर लड़ना चाहिए, और ये अभी भी होता है जिंदगी में, आज भी होता है, बहुत बार होता है। आप बड़े हैरान हो गए लोग, मैं ना मीडिया से बहुत डील करता हूँ, मतलब मेरा काम के अंदर है कि मुझे मीडिया के साथ बातचीत करनी है। और बहुत लोगों को सीक्रेट नहीं पता कि मुझे वो कभी पसंद नहीं था, मैं मीडिया से बहुत घबराता था, मुझे मीडिया पसंद नहीं था। कोई बैठा होगा शायद अखबारों से, यहाँ अगर मीडिया से कोई होगा तो मुझे लगता था यार इनसे तो दूर रहना चाहिए, और मेरा पूरा काम आज उनके साथ होता है, उनके साथ काम करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज से आप घबराएं तो हार जाए। तो वापस अपने अधिकारों की बात करूंगा, तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश और करनी पड़ेगी और तरीके निकालने पड़ेंगे मॉड्यूल की बच्चों को अधिकारों की बात चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में बताएं। होता क्या है कि जो कानून है, जो एक्ट्स है ना, ये बहुत, इनसे मैं भी घबराता हूँ, आप नहीं मैं भी घबराता हूँ पढ़ते थे,
लेकिन लिखे बड़ी 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 भाषा में लिखे होते हैं, जिनको वकील या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े ओहदों बैठे हैं, समझ जाए। लेकिन कोशिश ये करनी पड़ेगी इनकी, एक्चुअल सक्सेस इनका तभी है जब हम और आप समझ सकें। मेरे एक जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा है, मुझे वो एक चीज बोलते थे, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो हम लोग लिखते हैं, मैं लिखता, मेरे को लिखने का बहुत शौक है, हिंदी इंग्लिश सब में लिखता हूँ। तो वो कहते थे ऐसा लिखो जो एक छोटा बच्चा भी और एक 60 साल का बड़ा भी समझ पाए। ऐसा मत लिखो जो कोई समझ ना पाए। ऐसा लिखो जो 7 साल का या 6 साल का बच्चा और 60 साल का बच्चा एक ही, इतना सिंपल लिखो। तो आप जो कह रहे हैं अधिकारों को थोड़ा सिंपल करने की जरूरत है। ऐसे जैसे डिस्कशन हो रहे हैं, ऐसे डिस्कशन में बहुत कर रहे हैं। आप मेरे साथ कभी ट्रैवल करें, रायसेन छिंदवाड़ा कहीं जाएंगे, ऐसे बच्चों के साथ बैठ के नीचे जमीन पे बात करनी पड़ेगी कि आपके अधिकार। और हम बहुत सारे ऐसे गेम्स करते हैं जिससे बताते हैं बच्चों को, जैसे आपसे बातचीत हो रही है कि ये आपके अधिकार है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अधिकार सरकार ने जब साइन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक अधिकार शिक्षा का मिलेगा और एक नहीं मिलेगा। हर अधिकार हर समय बराबर है, ये बहुत जरूरी है समझना हमें। इसका ये मतलब है कि सपोज को आज इमरजेंसी हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो सरकार क्या करेगी? स्कूल बंद कर दो, सबको शरणार्थी को स्कूल में डाल दो। हम जैसे लोग जाके सरकार को कहते हैं, शशांक छत्तीसगढ़ में काम कर चुके हैं कि स्कूल पहले खोलो, कि बच्चों की शिक्षा का लॉस हो रहा है। क्योंकि शिक्षा जाएंगे, बच्चे जाएंगे स्कूल में, आपस में बच्चों से मिलेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो बच्चों के साथ शेयर कर पाएंगे, जो शायद आप हमसे नहीं बता पाएंगे। जैसे आप अभी शर्मा रहे हैं ना बताने में, तो कई चीजें नहीं बता पाते बच्चे बड़ों को। बच्चे कई बार अपने बच्चों के दोस्तों को जल्दी बता पाते हैं, या अगर ऐसे ऐसे एक्सपर्ट बैठे हो तो ये लोग निकाल लेते सर। अगर शशांक के निवेश को जोड़ना पाए, जैसा भी सर ने तो फाइनली मैं अभी तब पिज़्ज़ारिया पे आ गया हूँ, जो कि मेरे घर के बहुत पास है। तो मैं तब पिज़्ज़ारिया पे बैठा हूँ पिज़्ज़ा खाने को। इवेंट रिव्यू का टाइम हो गया था, इसलिए मैं इवेंट रिव्यू दे रहा हूँ। इवेंट बहुत धांसू था, बहुत लाइक क्या बोलते हैं कॉन्वर्सिव था। जो स्पीकर्स थे, जो पैनल था, वो ऑडियंस से बात कर रहे थे, ऑडियंस स्पीकर से बात कर रही। बट कुछ ऑडियंस की साइड से भाव अच्छा नहीं लग रहा था, तो इवेंट और अच्छे से फील कर सकते थे। ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, खाली स्पीकर और पैनल बोलते जाए और ऑडियंस चुपचाप सुनते जाए, तो वो थोड़ा बोरिंग इवेंट हो जाता है। तो इसलिए जब कॉन्वर्सिव रहे तो दोनों साइड से रहे, नहीं तो आज मैंने खूब बातें करी। मैं हर एक पैनल के हर एक मेंबर से बात किया। मैं लाइक मेरी जो 2 साल पहले जो काउंसलर थी दीना राजपूत जी, मैं उनसे मिला। मेरे को देख के बहुत खुश हुई कि मैंने मैं काफ़ी चेंजेस दिखा उनको, क्योंकि जब 7-8 साल पहले वो मेरी काउंसलर थी, उसके बाद मैं आज मिला तो उन्होंने कहा कि आप काफ़ी चेंज दिखा दी, मैं मम्मी पापा को बधाई हो। एंड तो इवेंट काफ़ी शानदार था। बस यही बोलना था कि इवेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, थम्स अप था इवेंट पे। लाइक अगला सेशन जब होगा तब भी मैं जाऊँगा। इवेंट काफ़ी लाइक झिकझक मज़ा आया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ कुछ। इम्प्रेसिव लगा जो कोऑर्डिनेशन की टीम थी, जो अंश टीम थी, AKS टीम थी, जो बाकी सब टीम्स थी, काफ़ी अच्छे से बात करी, काफ़ी अच्छे से कोऑपरेटिव रहे। बस अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। तब तक के लिए बाय, और मैं पिज़्ज़ा खा